ایک شمون نام کے بزرگ تھے، بنی اسرائیل سے تعلق تھا، بڑی عبادت کرتے تھے، 1000 سال عبادت فرمائی، ساری رات نفل پڑھتے، سارا دن روزہ رکھتے، اور پھر روزہ رکھ کے تو کافروں سے جہاد کرتے، ساری زندگی جہاد میں گزاری، جس جنگ میں گئے اللہ نے فتح عطا فرمائی۔ یہ ذرا سوچیے کہ جس کا تذکرہ میرے نبی پاک فرما رہے ہیں وہ کتنا بڑا آدمی ہو۔ ولی اگرچہ بنی اسرائیل کے تھے لیکن اتنا زبردست ان کا جہاد کرنے کا طریقہ تھا، بڑا جہاد کیا، پڑی انہوں نے، کافر بڑے پریشان تھے کہ بندہ قابو نہیں آتا، بڑی دور تک بات لئی، بڑی جدوجہد کی، لیکن حضرت شمون علیہ الرحمہ بنی اسرائیل کے ولی تھے، قابو نہ آئے، آخر ان کی بیوی کو خریدا۔ اور یہ ایک تو مثالیں امیریوں کی آ گئی ہیں، خامد بھی بکتے ہیں، یاد رکھ، بھائی بھی بکتے، اللہ ماشاءاللہ جب تو بکنے پہ آتا ہے تو پھر وہ اپنے معیار کو قائم نہیں رکھتا، پھر لوگ گر جاتے ہیں میاز۔ بیوی کو خریدا، کہنے لگے تو نے اس کے ساتھ رہ کے کیا وقت گزارا ہے؟ کہنے لگی کوئی سکھ نہیں پایا، ایک وقت روٹی ایک وقت کی بھوک، درویشی کا درس دیتا ہے، کچھ بھی نہیں ملا۔ حضرت شمون علیہ الرحمہ کی بیوی جب خریدی گئی، کہنے لگے جب یہ چونکہ یہ کم سوتے ہیں اور جتنی دیر سوتے ہیں گہری نیند سوتے ہیں، جب گہری نیند سو جائے تو رسیوں کے ساتھ جکڑ دینا۔ امام غزالی علیہ الرحمہ نے اس کو لکھا ہے، رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا بیوی نے۔ حضرت شمون اٹھتے نہ تو اپنے آپ کو رسیوں سے بندھا ہوا دیکھا، اللہ اکبر کہا، جب اللہ اکبر کہا تو ساری رسیاں ٹوٹ گئی۔ بیوی سے کہنے لگے تو نے کیوں باندھا؟ اس نے پھر دھوکہ دیا، کہنے لگی ہر چاند میں لوگ آ کے بتاتے تھے تیرا خاوند بڑا دلیر ہے، میں نے کہا میں بھی دیکھوں کتنا دلیر ہے، سارے ایک نیا رنگ، ایک نیا روح، ایک نیا طریقہ، تو میں نے تو آزمایا ہے، اور یہ تو چھوٹی چھوٹی رسیاں تھی۔ آپ فرمانے لگے چلو ٹھیک ہے، اگر تو نے آزمایا تو پھر دیکھ بھی لیا ہے۔ کچھ دنوں کے بعد اس نے زنجیروں سے باندھ دیا، لوہے کی زنجیروں، اٹھے تو بندھا ہوا پایا، اللہ اکبر کہا تو زنجیریں بھی ٹوٹ گئی۔ فرمانے لگے یہ تو نے کیا کیا؟ کہنے لگی دیکھنا چاہتی تھی کچی رسیاں تو توڑ لیتے ہو، زنجیریں بھی ٹوٹتی ہیں کہ نہیں؟ ہاں بھائی ٹھیک آ کے لوگ بتاتے ہیں تو واقعی دلیر ہے، ہر جنگ میں کامیاب ہوتا ہے۔ اب قریب بیٹھنے لگی، کھانا اپنے ہاتھوں سے کھلانے لگی، فریب کرنے لگی، دھوکہ دینے لگی۔ کہنے لگی بتاؤ تو صحیح طاقت کا راز کیا ہے؟ مومن نرم دل ہوتا ہے، ایک دفعہ کوئی مسکرا کے پاس آتا ہے تو سمجھتا ہے کہ شاید یہ میرا خیر خواہ ہے، اس لیے مومن دھوکے کھاتے ہیں، دھوکے دیتے نہیں۔ جب اس نے محبت کے لب و لہجے میں بات کی تو جناب شمون کہنے لگے اور تو میں کسی چیز سے قابو نہیں آ سکا، بال ان کے لمبے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے بال آتے تھے، ہماری شریعت میں جائز نہیں۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے زلف کانوں تک کی اجازت دی ہے، کندھوں تک کی اجازت ہے، کندھوں سے نیچے بال آئے تو حرام دکھایا اللہ نے، کندھوں سے نیچے جائز نہیں۔ ان کے بال بڑے لمبے تھے، بیٹھتے تھے تو نیچے دب جاتے۔ حضرت شمون کہنے لگے مجھے دنیا کی تو کوئی طاقت نہیں باندھ سکتی، ہاں میرے بالوں سے مجھے باندھ دیا جائے تو پھر نہیں میں اٹھ سکتا۔ بس اس کے ہاتھ بات آ گئی، اس نے کھانا بھی کھلایا، اس نے بستر بھی بچھا کے دیا، پیر بھی دبائے، جب سو گئے تو اس نے ان کے بالوں سے انہیں باندھ دیا اور کافروں کو جا کے بتایا کہ آج نہیں کھول سکے گا۔ جب اٹھے تو بندھا ہوا دیکھا، بیوی کی طرف دیکھا، تجھے خیال نہیں آیا کھول دے؟ کہنے لگی ساری زندگی غربت بھی توں دے، یہ دیکھ مجھے ہیرے ملے ہیں، کنگن ملے، یہ دیکھ میرے کانوں میں ہیرا، سونا، چاندی، ہر چیز، چل جا، تیرا کیا کرنا ہے؟ ساری رات عبادتیں، سارا دن تو ذکر فکر اور جہاد میں گزار دیتا، دھوکہ دیا۔ ان کافروں نے آ کے ستون کے ساتھ چارپائی اٹھائی اور ستون کے ساتھ کھڑی کی، پھر رسیوں اور زنجیروں سے باندھا۔ اللہ کے ولی کا سب سے پہلے ناک کاٹا، پھر تلوار کے ساتھ کان کاٹے، پھر آنکھیں نکالی۔ جب زبان کاٹنے لگے تو انہوں نے اللہ کو آواز دی، کہا میرے مولا میں کوئی لاوارث ہوں کہ کوئی مجھے دھوکہ دے اور اس انداز میں قتل کر دے؟ مولا میں دھوکے کھاتا رہا، میں کوئی لاوارث تو نہیں؟ جب یہ دعا فرمائی تو پھر بجلی چمکی، پھر اللہ کا قہر برسا۔ امام غزالی فرماتے ہیں وہ کافر جو آئے تھے وہ جلے، اس طرح جلے کہ ان کی ہوا بھی اڑ گئی۔ آپ کو بی بی دوڑی آئی اور پیروں میں بیٹھی، کہنے لگی بخش دو۔ آپ فرمانے لگے ساری زندگی میں تیرے دھوکے کھاتا رہا، اب اللہ کی لاٹھی چلنے لگی ہے، اس کی آواز نہیں ہوتی، ابدو خدا کے حوالے ہے، پیروں سے آگ چلی۔ کہنے لگے وہ دیکھنا سونے سے کیا تجھے بچائے، وہ جو تیرے ہاتھوں میں ہیرے کے کنگن ہیں انہیں کیا تیری حفاظت کرے، اب وہ جو تیرے کانوں کے اندر سونے چاندی کی بالیاں اور کانٹے ہیں اور جھومرے ان کو کیا تجھے نجات دلائے۔ جلتی رہی، تڑپتی رہی، چیختی چلاتی رہی، اور اس طرح چیخی کہ وہ خاک بنی، ہوا میں اڑی۔ اللہ نے اپنے ولی کی آنکھیں بھی دوبارہ عطا فرما دی، کان بھی دوبارہ عطا فرما دی۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے پہلے سے زیادہ طاقت دی، وہ جب باہر نکلے تو اعلان کرنے تھے لوگوں دیکھو دھوکہ والے جل گئے، تباہ ہو گئے، نام و نشان مٹ گیا، اور مجھے دھوکہ دیا گیا تھا تو اللہ نے مجھے پہلے سے زیادہ طاقتیں عطا فرما دی، پہلے سے زیادہ قوتیں۔ دھوکہ نہ دے، فریب نہ کر، جو آپ کسی کو دے رہے ہیں۔ اور میرے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک حدیث تو یہ بتاتی ہے جو دنیا میں دھوکہ دے گا دنیا میں ہی اس کا نقصان اٹھائے گا۔ ایک ہوتا ہے محتاج، ایک ہوتا ہے فقیر، اس میں فرق ہے۔ ایک آدمی کو اچھے کپڑے پہننے کے پیسے نہیں ملتے تو وہ فقیر نہیں، وہ محتاج ہے، اس کے پاس تو ہے ہی نہیں تو وہ کہاں سے پہنے۔ لیکن ایک آدمی کے پاس لاکھوں اور کروڑوں روپیہ پڑا ہے لیکن وہ بھی سادہ سا لباس پہننا پسند کرتا ہے تو یہ فقیر ہے، یہ درویش ہے۔ کنجوس اور درویش میں بھی فرق ہوتا۔ ایک آدمی اس کا پیسے لگانے کو دل ہی نہیں چاہتا، خرچ ہی نہیں کرنا چاہتا، وہ بخیل ہے، کنجوس ہے۔ لیکن ایک شخص وہ ہے اس کے پاس سرمایہ ہے، مال ہے، لیکن وہ اپنی ذات کو بڑھانا پسند نہیں کرتا، وہ درویش ہے۔
वो फ़कीर है। हज़रत सैयदना अब्दुल रहमान इब्न औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के पास इतने पैसे थे कि नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तू पक्का जन्नती है पर सबसे आखिर में जन्नत में जाएगा। हुजूर मेरी गलती, फरमाया जितने पैसे हैं उतना हिसाब भी तो देना है। जिसके पास सिर्फ हैंड कैरी बैग होता है ना वो फटाफट बाहर आ जाता है, और जिसके जितने ज्यादा बैग होते हैं उसको उतनी देर चेन पे खड़े रह के इंतजार करना पड़ता है। तो फरमाया कस्टम भी तो तूने अदा करना है ना भाई, निकल के आना है उस जंगल से, तू कैसे जाएगा, जितना माल है अपना हिसाब देना है। तो हजरत अब्दुल रहमान इब्न औफ बड़े मालदार थे, 80-80 हजार दिरहम तो आपके इंतकाल के बाद आपकी अज़वाज के हिस्से में आए थे। इतने तगड़े मालदार थे, और देने का अंदाज ये था कि अपनी बीवी और बच्चों को खुली छुट्टी थी, कहते थे जो जिसका दिल का है खाओ। एक दिन में 5 अलग अलग खाने भी तुम पकाना चाहो तो तुम्हें इजाजत है। कंजूस नहीं थे, बखील नहीं थे, लेकिन खुद जब खाना खाते थे तो दाल को पीस कर शोरबा बनाकर उसमें रोटियां भिगो के खाते थे। लोग पूछते हैं कि जनाब हमारे लिए सारा कुछ है, बखील भी आप कोई नहीं, मालदार भी, ये क्या कर रहे हैं? तो फरमाते थे सुरीद खा रहा हूँ, ये खाना मेरे मोहम्मद की सुन्नत है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। फरमाया ये करीम का तरीका है, मैं वो तरीका, मैं फर्ज मोहब्बत अदा कर रहा हूँ, किसी की अदा को अदा कर रहा हूँ। ये मेरा अंदाज है, मेरी जात के बारे में मेरा यही अंदाज है। सिरका खा रहे थे तो बेटे ने कहा अब्बा जी आप क्यों खा रहे हैं, कितने दिन हो गए आपने भुना हुआ गोश्त नहीं खाया, तो खाएं। फरमाने लगे बेटे कल लुकमा उठाया था गोश्त खाने को तो मुझे अपने नबी का फक्र याद आ गया, मुझे रसूल रहमत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने वो जो महीना महीना खाना नहीं खाया वो याद आया है। तो हुजूर की वो चीजें मुझे इन आला ग़िज़ाओं में मुब्तला होने नहीं देती, तुम्हें इजाजत है। तुम भाई बादशाही हो फकीरी, आज लोगों के पास इतना कुछ होता है नहीं जितना कुछ वो अपने आप को दिखाना चाहते, दिखाने का मामला हो गया, बल्कि कर्ज उठा के लोग अपने आप को बड़ा करके पेश करते हैं, हालांकि ऐसा होता नहीं। इस्लाम फकीरी, बादशाही में फकीरी, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की एक हदीस है, अगर आप इसको समझ जाए तो बहुत सारी चीजें जो है वैसे खुल जाएंगी। एक सहाबी ने कहा हुजूर मेरे जिस्म को सुकून नहीं, वजूद को सुकून नहीं, ज़ाहिरी वजूद की बात की। हुजूर ने फरमाया इज़हद फिद दुनिया फरीहिल क़ल्ब वजस्ट, फरमाया दुनिया से दिल दूर कर ले, इज़हद फिद दुनिया, दुनिया में ज़ुहद इकट्ठा कर ले, दुनियादारी से जरा अपने दिल को दूर कर, अल्लाह तेरे वजूद को भी सुकून अता करेगा और तेरे दिल को भी सुकून अता फरमाएगा। दुनियादारी इज़हद फिद दुनिया, जरा हट ला दुनिया से, हट जरा, अल्लाह तेरे दिल को भी सुकून दे देगा और तेरे जिस्म को भी। अल्लाह सुकून, राहत, फरहत, फरीहल फिल क़ल्ब के लफ्ज़ हदीस में आए, फरहत, फरहत का माना खुशी, तसल्ली, ताजगी अल्लाह अता फरमाएगा जब तू अपने आप को थोड़ा दुनिया से बचाएगा। अजीजों बड़ा शौक है, हम देखते हैं प्रोटोकॉल का बड़ा रंग है, बड़ा प्रोटोकॉल है लोगों का, 2 गाड़ियां आगे 2 पीछे, बंदा एक बैठा है, तो समझता है कि वो जो ये जिंदगी है ये तो शायद किसी को और मुयस्सर ही नहीं। और मैं अक्सर देखता हूँ, मैं कहता हूँ यार कैसा अजीब शख्स है, दिन पुलिस वालों का इसने प्रोटोकॉल पे लगाया ना, हुकूमत खत्म होगी तो यही पकड़ के इसे जेल में डालेंगे, लेकिन ये खुश है। हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह तआला अलैह का एक दरवेश था, तो वो सड़क से गुजर रहा था, अलाउद्दीन खिलजी का जमाना था। अलाउद्दीन खिलजी बहुत बड़े हुक्मरान हुए मुत्तहिदा हिंदुस्तान के, पाकिस्तान, हिंदुस्तान, अफगानिस्तान, सब पे इनकी मुश्तरका हुकूमत। सो इनका एक गवर्नर रोड से गुजरना था, उसने तो सिपाही जो थे वो रास्ते साफ करा रहे, तो एक बुजुर्ग थे अबू अली कलंदर के मुरीद थे, खलीफा थे, तो वो भी रोड पे गुजर रहे, तो तले तलहा हाथ में छड़ी पकड़ी है, तले तलहा गुजर रहे, तो कहने लगे बाबा जी साइड में हो जाए, गवर्नर साहब ने गुजरना है। तो फरमाने लगे इतनी सड़क पड़ी है गुजर जाएगा कि मुझे साइड पे करके गुजर जाए। मैं कहा नहीं आपकी मेहरबानी हट दे। कहा मैं क्यों हटूं, वजह उसकी, इसमें इतना रास्ता है गुजर जाए, मैं बुरा आदमी हूं, तुम मुझे साइड पे करोगे फिर रास्ता ढूंढता फिरूंगा। कहा बाबा तेरी मेहरबानी हट जा, निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या है और खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या है। उसने कहा मैं उसको क्या समझता, बादशाह होगा तो गार होगा, मैं उसे क्या समझता हूँ, और मैं नाराज ना होइएगा, अमीरों को खराब गरीबों ने किया है, बड़ों को खराब छोटों ने किया। अगर हम गाड़ियों के आगे पीछे भागना छोड़ दे तो लीडर सियाने हो जाए, ये हमारे नारे तबाही करते हैं, हम नहीं समझते कि हम कितना नुकसान करते हैं। निगाह फकर में शान सिकंदरी क्या, खिराज की जो गदा हो वो कैसरी। इकबाल कहते हैं कि वो तो बड़े फकीर है, इनको तुम बादशाह समझते हो, तुम्हारा टैक्स ना मिले तो उनकी हुकूमत नहीं चलती, तो खिराज की जो गदा हो वो कैसरी क्या। खैर हजरत अबू अली कलंदर रहमतुल्लाह अलैह के वो दरवेश जो थे ना, वो रोड पे कहा बाबा जी हट जाए, कहने लगे नहीं हटता। उन्होंने बाजू पकड़ के ना बाबा जी को जरा जोर लगाना चाहा तो बाबा जी ना आलती पालती मार के, चौकड़ी मार के तो जमीन पे बैठ गए। कहेगा जो उठाया जाता हो तो उठा लो। अब तो दरवेश कभी जिद करते नहीं, और अगर करें तो मुस्लिम शरीफ में मेरे नबी पाक ने फरमाया रुब्बा अशरज़ अकबर लौ अक़सम अलल्लाह ला अबर्रा, फरमाया रब करीम का बंदा तो अल्लाह को कसम दे दे तो अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमा देता है, अल्लाह उसकी कसम को पूरा फरमाता है। तो मैं जाओ उठता हूँ तो उठा लो। बहस होने लगी, लोग इकट्ठे हो गए, रश हो गया। इतनी देर में गवर्नर साहब की सवारी भी पहुंच गई। गवर्नर साहब कहने लगे बाबा उठता क्यों नहीं, तो लगे क्यों उठूं, इतना रास्ता है गुजर जा। मैं बाबा क्यों शोर डाला हुआ, कहने लगे तू मेरे नौकर का नौकर हो के मुझे उठने का कहता है, मेरे नौकर का। और गुस्सा आया तो उसने बाबा जी को थप्पड़ मार दिया।
बाबा जी और हंसे, कहने लगे तुझे कहा था ना नौकर का नौकर है, तू वाकई नौकर है। उसने कहा मैं थप्पड़ फाड़ता हूँ। बाबा हंसता है। ये ज्यादा इंसल्ट होती है। आप करके देखें, आप गुस्से के जवाब में गुस्सा करें तो सामने वाले को कोई सजा नहीं। आप कभी गाली के जवाब में मुस्कुरा देना, याद अब मैं तेरे साथ बात करूं, तेरे साथ बहस करो, तो ज्यादा बड़ी सजा। याद रखिएगा, हम तो दुश्मन को भी पाकीज़ा सजा देते, हाथ उठाते नहीं, उसे उसकी नजरों से गिरा देते। जब थप्पड़ मारो तो बाबा जी हंस पड़े, कहने लगे तुझे कहा था ना तू गुलाम है, तू भाई वाकई गुलाम है। अब जब हंसे तो अब उसको ठारस हुई, तवज्जो हुई। कहने लगा बाबा माजरा क्या है, मैं कैसे गुलाम का गुलाम हूं? तो बाबा कहने लगा देख ला, तुझे मस्जिद आने का कहे तो तेरे लिए मुसीबत है। इतने लोगों को तू टाइम दे लेता है लेकिन अल्लाह को तू नहीं दे पाता, तो तू नफ्स का गुलाम है और नफ्स मेरा गुलाम है, लिहाजा तू मेरे गुलाम का गुलाम है, तू मेरे नौकर का। कहने लगे ये सारी नफ्स परस्ती है जो तूने दुनियादारी इकट्ठी की हुई है ना, ये जो तेरे नारे लग रहे हैं और तू समझता है कि ये मेरे, ये तू तनख्वाह देता है, तेरे नारे लगाते हैं, जरा तनख्वाह छोड़ के भाग कर फिर देख तेरे कितने नारे लगते हैं। तू ये दसते हैं तुझसे लोग तेरे आगे पीछे भागते हैं, जरा इक़्तिदार से साइल हो तो ये पता लगे तेरी कीमत क्या है। तू समझता है कि मेरी जेब में पैसे हैं, लोग मुझे सलूट करते हैं, तो नहीं है, तुझे सलाम कोई भी निकाल रहा, तेरी जेब को सलाम हो रहा है, तेरे उहदे इक़्तिदार को और तेरी वहशत और दहशत को सलाम है। उसने कहा हज़रत जी मुझे सलाम कब होगा? तो फरमाने लगे जब तू बादशाही में फकीरी करेगा, जब तू बादशाही में भी फकीरी होती है मेरे अज़ीज़ों, बादशाही में भी फकीरी होती है। आपके इस हिंदुस्तान का एक बादशाह का नाम औरंगजेब आलमगीर भी है। औरंगजेब आलमगीर के इंतकाल का वक्त आया ना, तो औरंगजेब आलमगीर बीमार हुए, आखिरी वक्त मिंबर पर चढ़े और लोगों को कहने लगे लोगों तो मुझसे अक्सर पूछते थे ना कि बादशाह तेरी दो उंगलियों पे स्याही को लगी रहती है और तेरे हाथों में सुराख क्यों रहते हैं। औरंगजेब आलमगीर, ये मैं आपको फरिश्तों की कहानी नहीं सुना रहा, इस दुनिया में, इस दौर में, इस धरती पर बसने वाले लोगों की कल की बात सुना रहा हूँ। इस हिंदुस्तान में हिंदुओं के मुल्क पर हुकूमत करने वाले एक मुसलमान दयानतदार बादशाह की बात सुनो। कहते हाथों में सुराख का पूछते थे ना तुम लोग, और तुम मुझे पूछा करते थे तेरे हाथों पे स्याही क्यों लगी हुई है। औरंगजेब आलमगीर मुत्तहिदा हिंदुस्तान का मुतलकुल एनान बादशाह कहने लगा मेरे इंतकाल का वक्त आ गया है। अब मैं तुम्हें बताता हूँ, मैंने सारी जिंदगी हुकूमत के खजाने से 1 रुपया तनख्वाह नहीं ली। मैं किताबत करता था, किताबें लिख के जो मुझे मजदूरी मिलती थी, और मैं टोपियां सिया करता था, मेरे हाथों में सुराख हो जाते थे। मैंने उसका रिज़्क़ हलाल खाया है और फरमाया 50 रुपये फलां जगह मैंने रख दिए हैं, मैं मर जाऊं तो उसका मुझे कफन दे देना और लोगों को बताना कि हिंदुओं, मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जिस तरह मुझे कहा था मैंने उस तरह हुकूमत की। वो खुतबा पढ़ रहे थे, औरंगजेब खुतबा पढ़ रहे थे और गलियों में खड़े हिंदू कलमा पढ़ के मुसलमान हो रहे थे। मेरे दोस्त, ये बादशाही में फकीर, हमारे पास तो पैसे आते हैं तो ड्राइवर की जिम्मेदारी है, ये भी प्रोटोकॉल है, ड्राइवर ने गाड़ी भी चलानी है और साहब का दरवाजा भी खोलना है। उसने अंदर बैठे के तो दरवाजा भी ड्राइवर साहब में नफ्स परस्ती है, जितना मर्जी आगे ले जाओ, इतना मर्जी। ये कोई बादशाही, ये कोई आपका बड़ा पान नहीं है, उतल खा लेता है, मजबूर है, क्या करे। हो सकता है कल को उसके पास पैसे आए तो बदला लेने के लिए आपको बुला लेकर चल मेरा दरवाजा। वो मोहब्बत के साथ, अकीदत के साथ थोड़ी ऐसे कर रहा है। हम सारा माल आता है, कम बड़े बन जाते हैं। जो बड़े थे वो हजरत मौला कायनात शेर खुदा अली मुर्तज़ा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, मैंने हुजूर की बारगाह में अर्ज़ की या रसूलल्लाह को नसीहत ही कर दे हुजूर मुझे कोई। तो हुजूर ने फरमाया अली जो दुनिया में प्रोटोकॉल लेता है आखिरत में रुसवा हो जाता है। जो दुनिया में दुनियादारी दबदबे तनतने की ख्वाहिश करता है, ख्वाहिश कर। मुल्ला रूमी रहमतुल्लाह ने बड़ा अजीब जुमला लिखा है। मुल्ला रूमी कहते हैं हमारे पास फिरौन जितने पैसे नहीं, नमरूद जितनी दौलत नहीं, वरना कई लोगों का खुदा बनने को दिल करता है। माज़ अल्लाह ताला। वो कहते कई लोगों का दिल करता है कि लोग हमें सजदा करें, लेकिन फिरौन और नमरूद जितनी ताकत दौलत नहीं, वरना लोग कराए। माज़ अल्लाह ताला। ख्वाहिशात नफ्स इतनी बढ़ गई, अच्छा लगता है, अच्छा लगता है। हमारे लीडर कहते हैं 2-4 बंदे हल्के में मरे ना तो इलेक्शन का मजा ही नहीं। माज़ अल्लाह ताला, ये हमारा हाल हो गया। हम खुद ही ना बेटी गरीबी में नाम पैदा कर। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज रात को बैठ के ना लिख रहे थे, तो एक नौजवान आपकी खिदमत के लिए रहता था हर वक्त। हजरत जी लिख रहे थे, चिराग जल रहा था तो वो तहरीर कर रहे थे। एक मेहमान भी आया हुआ था, तो वो नौजवान ना बैठे बैठे ना लेटा तो सो गया। तो मुझे यहाँ की मेरी बात पे बैठा बैठा ना वो बेचारा सो गया। तो हजरत ने तकिया पेश कर दिया, वो नौजवान ने तकिया पकड़ा तो उसने लपाट के वो गहरी नींद चला गया। एक झोंका हवा का आया तो चिराग गोल हो गया। मेहमान बैठा था, कहने लगा हजरत जी मैं चिराग जला दूं? फरमाने लगे नहीं, मेहमान से खिदमत नहीं लेनी चाहिए, मैं जलाता हूँ। काफी इसको उठा ले, कहने लगे जवानों को नींद ज्यादा आती है, सोया रहने तो। हुजूर सोने तो नहीं आया, खिदमत के लिए आया। मतलब लगे यार सोया रहने तो क्या अर्ज है। हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज उठे, चिराग जलाया, वापस आके बैठे तो वो देखे ना ये बादशाहों के लिए तो नहीं ना ऐसा होता, बादशाह तो नहीं ना कर सकते। या तो थोड़ा सा जिसके पास पैसा आ जाए वो कहता है कि तू नौकर मेरे मुंह में कभी लुकमा भी डाल दे तो फिर ही है। वह मैक्स का मुझसे तनख्वाह लेता है और अब ये इतना काम भी नहीं कर सकता। हर काम हम कराना पसंद करते हैं। कहा हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज से कहने लगा हुजूर अजीब आप बादशाह हैं, आपने गुलाम को जगाया ही नहीं। और उमर ने क्या, हजरत उमर बिन अब्दुल अजीज ने जो कानून पेश किया बड़ा जबरदस्त है। फरमाने लगे कुम तू आना उमर बिन अब्दुल अजीज, रजातु आना उमर बिन अब्दुल अजीज। फरमाने लगे क्या हो गया है?
मैं जब चिराग जलाने गया था तो फिर भी उमर बिन अब्दुल अजीज ही था, और वापस आया हूँ तो फिर भी उमर बिन अब्दुल मैं तब्दील मुअत्तसिम ने जोजी ने कहने लगे कौन तू? जब गया था आना उमर बिन अब्दुल अजीज, फिर भी उमर बिन रजा तू, और मैं लौट आया हूँ वापस आया हूँ तो देख लो, को कमी तो नहीं हुई, मेरा बाप भी वही है, मैं थी आना उमर बिन अब्दुल अजीज। मैं बदला तू दियार इश्क में अपना मकाम पैदा कर, नया जमाना नए सुबह शाम पैदा कर, बादशाही में जो फकीरी है ना मेरे दोस्त, जो उसकी लज्जत है देखिए ना, रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दो जहां के बादशाह। हुजूर फरमाते हैं मेरे दो वजीर जमीन पे हैं, दो आसमानों पे हैं। वजीर किसके होते हैं? बोलिए ना, दो मेरे वजीर तिरमिजी की हदीस है, दो जमीन पे हैं, दो हुजूर जमीन वाले वजीर कौन से हैं? फरमाया अबू बकर और उमर। आसमान वाले कौन है? फरमाया जिब्रील और मीकाईल अलैहिमुस्सलाम। मेरे दो वजीर यहाँ हैं, दो वजीर हुजूर बादशाह है, वो दो आलम की रहमत थे, जहां चाहते वहीं रहते, ये उनकी मेहरबानी है कि ये आलम पसंद आया। हुजूर दो जहां के बादशाह है, लेकिन मेरे नबी पाक कपड़ा खुद सी रहे, जूता टूट गया है तो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उसको गांठ भी उनके मेरे ख्याल जूती वाला काम मौके नहीं दिया जी। मेरा नहीं ख्याल कि अब कोई 10,000 लोग जो तनख्वाह लेता है वो भी जूता बांटता हो, नहीं आप ही की गढ़ है, किसी को भी नहीं गिटाई था। क्या ख्याल है आपका? ठीक बात कर लो। नबी पाक जूता भी खुद गांठते, कपड़ों को पेबंद भी, हुजूर अपने कपड़े धो भी खुद लेते। मेरे रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम घर में बकरियों का दूध भी धो लेते, और ऐसा भी होता। ये बादशाही में फकीरी है ना, दो जहां के बादशाह, लेकिन सलाम उस पर के जिसने बादशाही में फकीरी की। रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हज़रत आयशा फरमा के घर आए, कहा ऐसा खाना तैयार है? कहा हुजूर अभी तो खाना तैयार करने पर मैं तुम आग जलाओ, मैं आटा गूंद देता हूँ। किसकी बात है? नहीं लड़ना चाहिए, रखना चाहिए, तुझे मंगा दे पैसे मेरे को पहली के, मैं डंडे नहीं मार दे। मैं आया तो पता नहीं, मैं किसी बुला का नाम दूसरा टुकर ही नहीं पकाया, मैं आ गया कार, तुम पता ही नहीं लगा, मैं ही आ गया कार। अल्लाह खैर कर भाई, हिटलर ना बनो, हर जगह हिटलर ना बनो। उसने सलूक जिंदगी का हिस्सा है, पाकीज़गी जिंदगी का हिस्सा है। मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मैं गया नबी करीम से मिलने तो मोटे बांध की चारपाई, हम उसे अजी मुंजी मंजी आंदे सालो, मोटे बांध की चारपाई, मिशकात की हदीस है। हज़रत उमर फरमाते हैं मैं सख्त दिल वाला शख्स था, हुजूर से मिलने गया तो नबी पाक आराम कर रहे थे चारपाई, मैं जाके करीब जमीन पे बैठ गया, हुजूर ने आहट सुनी तो हुजूर उठे। फरमाते हैं जब नबी पाक उठ के बैठे तो हुजूर के वजूद पर मैंने बांध के निशान देखे, कहते मैं रो पड़ा, सख्त दिलता पर रो पड़ा। मैंने कहा हुजूर कैसे हो, किस तरह मौजे करे और आप इस बांध की चारपाई पे? तो मेरे करीम रसूल ने फरमाया उमर तुझे अच्छा नहीं लगता, जितनी मौज करनी है दुनिया में कर ले, आखिरत में जलील हो जाए। फरमाया उनको करने दे मौज, वो तो जलील होने के लिए कर रहे हैं, और मैंने इस दुनिया से क्या लेना है, थोड़ा सा वक्त गुजारने के लिए आया हूँ, यहाँ के बंद होंगी, वहां मेरा रब सारी इज्जतें मुझे ही अता फरमा देगा। इस हद से दुनिया फरीह कल जस। मेरे अजीजों, ये फकीरी मेरे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, दरवेशी मेरे रसूल पाक की। हजरत बिलाल हबशी को जोबे सवेरे सवेरे बुलाया और बुला कर बोला बिलाल रात में मेरे बिस्तर पे कपड़ा डबल करके बिछा दिया था, डबल करके बिस्तर बिछा दिया था तुमने। रसूल क्या हुआ? और मैं नींद तो मुझे बड़ी आई है पर मेरे नफल कुछ रह गए, आज के बाद डबल करके ना बिस्तरा बिछाना, सिंगल ही बिछाना, उस पे जरा करवटें बदलता रहता हूँ तो आग जल्दी खुल जाती है। मेरे दोस्तों आशा कहा लोग यकीन करें ना, गर्मियों में सवेरे उठते हैं ना सर्दियों में उठते हैं, गर्मी में एसी नहीं उठने देता और सर्दी में बिस्तर नहीं जान छोड़ता, उठते ही नहीं हम, बल्कि बाकी के मामलात भी हमारे इसी परेशानी का शिकार है। सुनो और याद रखो, मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई, बादशाही में फकीरी मेरे रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बादशाही में फकीरी सिखाई। हजरत सैयदना सलमान फारसी को हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बुलाया तो कहा मेरा दिल करता है आपको मैं मदाइन का गवर्नर बना दूं। हजरत सलमान फारसी बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक रखते थे, बिकते बिकाते मदीने में आके बिके, फिर निगाह मुस्तफा में बिक गए सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बड़े तगड़े कबीले से ताल्लुक था। या हजरत उमर ने फरमाया मैं आपको गवर्नर का जी जैसे आपका हुक्म है, अमीर की बात बोलना, गवर्नर बन गए। और गवर्नर साहब करते क्या है? गवर्नर साहब का हाल ये कि गवर्नर साहब ने कोई फटे पुराने सादे से कपड़े पहने और एक हाथ में छड़ी पकड़ी है, कभी इधर घूमते हैं कभी इधर, मदाइन की गलियों में गवर्नर साहब घूम रहे, अल्लाह अकबर। जहां सवारियां उतरती थी ना शहर की, लोग जो किराया लेके घोड़ों पे सवार करते थे, जहां वो लाके उतारते थे, वहां एक शख्स उतरा, मेहमान आया किसी के घर में मदाइन, वो शख्स मेहमान आया तो उसके पास बड़े बड़े बक्से थे, उसने हजरत सलमान फारसी को घूमते देखा, कहने लगे ओ गुलाम इधर आए ना, ओ बोलिए ओ गुलाम इधर आओ। हजरत सलमान फारसी कहने लगे जी जनाब। कहने लगे मेरा सामान उठा और फला घर में मैंने जाना छोड़ के आ, जरूरत तो करे कोई, कुछ जरूरत तो करे, काउंसलर साहब को भी आवाज दे देती, ताकत तो करे कोई, एक मामूली सिपाही को भी कहने की जो ना सब इंस्पेक्टर है ना वो किसी ओहदे पे फायर, सिर्फ एक सादा कौम का वो पैर, उसको कहते तो इधर आओ गुलाम, भाई गवर्नर कोई कह दिया। गवर्नर साहब ने सर के ऊपर बक्सा उठाया और गलियों में गुजरे, कहते हैं भाई गुलाम को रास्ता दे दो, मेरा सामान वजनी है, तेरा गुलाम को रास्ता दे दो, सामान वजनी है, पीछे हट जाओ, मेरा रास्ता दे दो। शहर में दाखिल हुए तो लोग दौड़े आए, कहा हुजूर हमें दे दे। फरमाया नहीं, उसने मुझे कहा है गुलाम उठा,
वो शख्स शर्मिंदा हो गया, कहने लगा हुजूर मुझे कब खबर थी कि आप गवर्नर हैं, गलती हो गई, मैं गुलाम क्या बैठा। हजरत सलमान ने फारसी रो पड़े, फरमाने लगे तू मेरा मौसम है, तूने तो मुझे मेरी औकात याद करा दी है। मैं गुलाम हूँ, मैं खजूरें बेचा करता था, मैं मदीने में नौकरी करता था, तूने अच्छा किया है। फरमाया ना तू तो मेरा मौसम है, तूने मुझे याद करा दिया, मैं क्या ना अब मैं ही लेके चलूंगा। रास्ते में जा रहे एक शख्स दौड़ा आया, कहने लगा हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, ये बादशाह है, फकीरी हो रही है, हुजूर वजनी बड़ा है, मुझे दे दे, मैं उठा लेता हूँ। तो हज़रत सलमान फारसी फरमाने लगे पहले वादा कर, क़यामत के दिन मेरे गुनाहों का बोझ उठा लेगा, वादा कर। तू कहेगा अल्लाह के हुजूर के, या अल्लाह सलमान के जो पाप है उनका बोझ मैं उठाता हूँ। कहने लगा हुजूर मैं तो अपना नहीं उठा सकता। फरमाया पीछे हट जाओ, अगर वहां मेरा कोई बोझ नहीं उठा सकता तो यहाँ भी कोई ना उठाए। हजरत सलमान फारसी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर है सूबे। मेरे दोस्त, हमारी ये जो झूठी अना है ना, लोग मेरा इस्तकबाल करे, मुझे उठ के मिले, मुझे प्रोटोकॉल दे, मेरा नाम जपे, मैं होती रहे हर जगह, बस मुझे ही लोग जाने। और मेरे अजीज इस धंधे से बाहर आ, नफ्स परस्ती की इस जंग से निकल आ, अपने मिजाज की इस किल्लत से निकल आ, अपने आप को जो बात नहीं भी आती होती उसमें भी हम दखल दे के अपना कोई ना कोई पैगाम और जुमला जरूर बयान करना चाहते हैं। भाई हमारा भी नाम लिख लो, हम भी शामिल है, हमें भी पता है इस गोरख रंधे का कुछ ना कुछ, हमें भी शामिल कर लो। ये नफ्स परस्ती की जंग है, इससे निकलो। अगर रब करीम ने बादशाही दी है तो इसमें फकीरी करो। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री कर लेनी चाहिए, तो ना बोले आप लोग, मुश्किल काम बता दिया ना मैंने, किसके कपड़े इस्त्री करने को कहा? ये अल्लाह खैर करे, मैं क्या और मैं तो अनुमारिया दी गल कर चली, भूले नहीं ना आप लोग। कभी कभी अपने कपड़े खुद इस्त्री, कभी कभी अपने जूते खुद पॉलिश कर, कुछ नहीं फर्क होता, इससे आपका लफ्ज कुचला जाए। कभी कभी ना, कभी कभी बावजूद मोटरसाइकिल और गाड़ी की मौजूदगी में पैदल सफर कर लेना चाहिए, कुछ नहीं फर्क होता। कभी कभी कोई आधा किलो चीनी पकड़ के दुकान से खुद अपने, कोई नहीं कहने लगा कि गरीब हो गए, वे खुद ही आधा किलो खा ले, कह ले तो को कहता है कुछ ना कुछ अपने नफ्स पे बोझ डाले। भाई कभी कभी आप भी, कभी कभी जो आपका मुलाजिम है ना घर में, उसको बिठा के खा करें, बैठ यार मेरा दिल करता है मैं तुम्हें चाय बना के दूं, कभी क्या करें घर वालों को, बैठो आज मैं तुम्हें खाना गर्म करके दे देता हूँ, कुछ फर्क नहीं आने लगा, इज्जत शान में कोई कमी नहीं आने लगी। कभी कभी जो काम, वो तो घूमने वाली कुर्सी रखी हुई है ना, जिस पे बैठ के हम हिसाब करते हैं, कभी कभी उस पे किसी गरीब को भी बिठा के देखे, कुछ नहीं फर्क आने लगा। ये इस पर कुछ कोड़े बरसाए ताकि ये कुछ समझदार हो जाए। ये जो हमने बड़ी लंबी चौड़ी अपने लिए ड्यूटी अल्लाह के दरवाजे खोल रखे, ये रोज हमें दूर कर रहे। ये नफ्स परस्ती की जंग होती है जो बंदे को अल्लाह के दरवाजे से दूर ले जाती है। ये नबी पाक की मोहब्बत दिल से निकाल दी है। ये ज़ेल के कर अच्छी सोच नहीं आने दो,